Evening, very delighted and honored to have the cast and crew of a very unique film which has had its gala premiere today. The film is called Rautu Ki Beli. It is actually a village in Uttarakhand where the film has been shot. It is a crime mystery, and we are very delighted to have the director of the film, Anand Surpur, along with Nawazuddin Siddiqui, the actor, and also the CEO of Z Studios, Sharik Patel. I request Anandji to say a few words about the film and what it's all about. And then, if Nawaz Bhai would like to say a few words, then we'll throw the floor open to questions. So actually, we can't talk about the film because it's a mystery. So I don't know what to say. I would like all of you all to watch the film, and then maybe also we can have a conversation. That would be better, I think, because mystery mein kya hai? It's set in Uttarakhand. It's set in a small village. The entire village. We shot the whole film in that village, and that's all we can say about it. So I would just like to add that Anand Surapur is not only the director, he has written the screenplay Sharik. along with Sharik Patel, and he's also the editor of the film along with Manish Manish Jetli. Jetli. Yeah. So you have actually created this film. So I like to uh, do everything myself because I know I'm the only person that knows this because it's my film. So the more control I have, the better it is. Let me add because Anand does not. He's a man of few words. Uh, नहीं तो आनंद ये कहानी हमें लेकर के आए थे कुछ जो जर्म ऑफ एन आइडिया था वो 10-12 साल पहले जब मैं जी में भी नहीं था और तब से ये आइडिया हमारे दिमाग में था सेइंग कि यहाँ करना है और वी स्टार्टेड ऑफ द जर्नी इन 2000 आई थिंक 12-13 वेन एवर इट वॉज कि एक राइटर को लाए एक कहानी लिखी गई फिर दूसरी राइटर को लाए कहानी लिखी गई तीसरा राइटर आया उसने कुछ और करा फाइनली देन I sat down and I merged it all into what I thought should be the super structure, and that's where the character of what Nawaz Bhai is playing, emerged from that. और फिर उसमें जो रेड हेरिंग्स डालने थे जो टिपिकली एक मिस्ट्री में होता है वो सब करते करते टुक अस 10 years, एंड इट वाज ओनली जब नवाज भाई ने बोला कि हाँ मुझे ये पिक्चर करनी है is that I think we really got down to it in 2000 I think 21 में I think is when we started 21 में तो we started writing it completely saying कि let's जो 8-9 साल की जो मेहनत थी वो सब थोड़ा बाहर निकाल करके we that's when Anand sat on it and got it done और मोमेंट नवाज भाई said yes to it तब से और immediately उन्होंने हाँ बोला और डेट भी दे दी सें कि चलो 30 दिन बाद हम लोग शूट करते हैं तो कैसे हम लोग ने ये 30 दिन में पूरा we he had a date जो खुल गया था last year we managed to utilize his dates for that and it was wonderful working with Nawaz on this he's just such a fantastic actor वो तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं है but in this you'll see a very different side of Nawaz and it's a very different style of mystery murder mystery also जो आप normally देखते हैं जो हम लोग वो थोड़ा इट्स अ जॉनर ब्रेकर है इन टर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट ऑल द बीट्स जो होनी चाहिए वो सब तो है ही है बट आई थिंक ट्रीटमेंट में आई डोंट थिंक आप लोग ने एटलीस्ट इंडियन स्क्रीन में ऐसा कुछ देखा होगा दैट्स ऑल लीव इट एट नवाज भाई आई थिंक जैसे कि शारिक भाई ने बताया कि मर्डर मिस्ट्री है और बहुत ही यूनिक स्टाइल है और बहुत ही कम देखा जाता है इस तरह का और जो इन्वेस्टिगेशन करने का जो तरीका है वो बहुत ही नॉर्मल इतना नॉर्मल है कि आपको एक लगेगा कि एक लाइफ जी रहे हैं हम उन लोगों के उस टीम के साथ तो मुझे ऑफ कोर्स करते हुए बड़ा अच्छा इसलिए भी लगा कि इट्स नॉट लाइक कि नाउ आई एम प्लेइंग ए कॉप और आई एम इन्वेस्टिगेटिंग समथिंग बट इट वाज लाइक ए लाइफ एक स्मॉल टाउन की लाइफ है उसमें उसी गांव में एक पुलिस स्टेशन है कॉप हैं उनकी टीम है जो धीरे धीरे अपने पेस में वो इन्वेस्टिगेट करना शुरू करते हैं चीज़ों को बाकी ज़्यादा चीज़ें मैं बता नहीं पाऊंगा वो मिस्ट्री अदर मिस्ट्री चली जाएगी So who would like to come in first with questions? Please introduce yourselves and your organization.
मैं लखनऊ से हूँ, नम्रता शुक्ला मेरा नाम है। मैं ये जानना चाहती हूँ इतना साल कैसे लग गया स्क्रिप्ट में, क्या फेरबदल होते गए? एक मिस्ट्री आप फिल्म बना रहे थे, तो मिस्ट्री का पहले से आपने सोच रखा था, फिर अचानक आपको समझ में आया कि यहाँ कुछ गलत हो रहा, फिर इसको चेंज कर दें। नहीं, ये जो क्या है कि एंडिंग हमको पता था, बट जो जरिया हाउ टू रीच दैट एंडिंग इन द बेस्ट पॉसिबल वे, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि जब स्क्रिप्ट राइटर्स चालू करते हैं, और यहाँ पर आपने बहुत लोगों को इंटरव्यू करा होगा कि चालू तो कर देते हैं, पिक्चर एंड कैसे होती है वो पता नहीं होता है। यहाँ पर हमें एंड पता था, और तो दिक्कत ये हो जाती है जब आपको पता है एंड कहाँ कैसा है, तो वो रास्ता आप या तो लेफ्ट से जा सकते हैं या राइट से जा सकते हैं या स्ट्रेट जा सकते हैं, तो उसी को एक्सप्लोर करने में जो सबसे इंटरेस्टिंग रास्ता था उसमें उसमें टाइम लग गया, बट द एंड वाज नोन लाइक 12 years ago. और अच्छी चीज बनाने के लिए टाइम लगता है। सही बात है ना, आजकल के ज़माने में फटफट बनता है, तो अभी हम लोग आराम से बनाएं और अच्छा अच्छा। हाय सर, माय नेम इज़ पांडुरंग, लोकल मीडिया गोमंत भूमि करके है। मेरा सवाल नवाजुद्दीन सर से है। सर, विलन के बाद कॉमेडी, कॉमेडी के बाद अभी थ्रिलर, थ्रिलर इस जो मूवी जो आप बोल रहे हो उसमें ज़्यादा आपको कॉमेडी और विलन से ज़्यादा ये थ्रिलिंग कॉप वाला जो कैरेक्टर है ये आपको टफ लगा? कैसे आप देखते हैं इसको? सर मैंने ना अपने आप को ऐसे पॉकेट में रखा ही नहीं कि जहाँ पे मैं सर्टेन टाइप के कैरेक्टर करता रहूँ। और थैंक्स टू माय डायरेक्टर्स, माय इंडस्ट्री पीपल, और लाइक शारिक भाई, स्टूडियो जी स्टूडियो, या आनंद जो है, इन्होंने हमेशा मेरी उस चीज़ का ख्याल रखा कि इस एक्टर के साथ कुछ भी करवा सकते हैं, है ना। और यही आई थिंक मुझे अच्छा भी लगता है कि वरना अगर एक जैसी चीज़ें मैं करता रहूँगा मैं खुद से बोर हो जाऊँगा। भले कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत बार आपकी चीज़ें वर्क नहीं करती, बट इट्स ओके, क्योंकि अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें वर्क करती हैं, बहुत कभी कभी नहीं करती। बट यही मज़ा है लाइफ का, मुझे लगता है कि एक लाइफ में आप बहुत सारी ज़िंदगी जीते हैं। आई थिंक ये मौका मैं तो गंवाना नहीं चाहता अपनी लाइफ में, इसलिए हमेशा कभी अगर मैं गैंगस्टर कर रहा हूँ तो कभी मंटो भी करता हूँ, मैं कभी ठाकरे करता हूँ, तो कभी इस तरह के अलग अलग तरीके के रोल करता हूँ, ताकि मुझे ज़िंदगी जीने का एक सबब मिले। मेरी लाइफ यही है और मुझे अच्छा लगता है इस तरीके से जीना, ताकि मैं अलग अलग किरदार कर सकूँ। I think he's so versatile that he can do anything ना. This year he's come out with Affa also and Haddi also. तो अगर आप देखें कि कैसे कैरेक्टराइजेशंस भी अलग हैं, बट परफॉर्मेंस इज ऑलवेज टॉप नॉच. आई थिंक वही दैट इज द एडवांटेज ऑफ एक्टर्स लाइक हिम हु आर कमीलियंस, दैट यू गिव देम कोई भी आप कैरेक्टर दो वो घुस जाते हैं उसमें. एंड ही सेड ना, मंटो भी करा, ठाकरे भी करा. आई मीन इट डजंट गेट मोर diametrically opposite than that, right? So I first would like to say that you all are extremely talented and it's a pleasure to be midst you all. My question is directed to the two of you, the director as well as the actor. First, the director. I think you're extremely talented and multifaceted. So would love to understand what's your source of inspiration to be a story writer as well as a director. Inspiration? What did you say? Inspiration? Yes. Well, see, the thing is that when we start making films, it's always because you like something. That's how you take the that's how you develop a story also. So actually, for us, it's we get comfortable with what we see and what we want to see and how we want to tell that story. So once we like that idea, then we develop it. It's like I like making stories, and Sure. he likes My acting. second part of the question is to you, sir. I would like to understand, is there any criteria on which you choose to, I mean, of course, you partially answered the question, but is there any criteria that you have to pick and choose a particular role? I mean, this is a murder mystery story, but is there any, thing that attracts you in a storyline, or is it just a character that you look at and you'd like to play that? ऑफ कोर्स स्टोरी लाइन तो ऑफ कोर्स होती ही है, बट मुझे जो ज़्यादातर अट्रैक्ट करता है वो कैरेक्टर, स्पेसिफिक कैरेक्टर्स करते हैं। तो मुझे लगता है कि उसमें मुझे एक्सप्लोर अलग तरीके से एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा, क्योंकि मेरी खुद की ये बहुत पर्सनल जर्नी है जहाँ पे मैं चाहता हूँ कि एक हर फिल्म में एक नया वर्ल्ड मैं एंटर करूँ और वहाँ पे उस जर्नी के साथ
फिल्म मेकिंग की जो प्रोसेस है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मेरे लिए बहुत पर्सनल भी है वो। मैं चाहता हूँ उसमें जब मैं रहता हूँ उसमें, उन 2 महीने जब भी शूटिंग होती है, 1 महीना जब भी शूटिंग होती है, मुझे वो लाइफ बहुत अच्छी लगती है, वो लाइफ में वाकई जीना चाहता हूँ। तो मोस्टली वो जो लाइफ है वो एक कैरेक्टर की लाइफ है, मैं चाहता हूँ कि उस कैरेक्टर की लाइफ और मेरी लाइफ मर्ज हो जाए, और मुझे फैसिनेट करती है ये प्रोसेस, बहुत फैसिनेट करती है मुझे। सर, अ, मैं जय नायक हूँ गोवा से। जैसे कि आपने कहा कि ये यूनिक मिस्ट्री है। कुछ साल पहले गोवा में एक यूनिक सुसाइड हो गया। एक लड़के ने एक वायर ले लिया, खुद के गले में टाई किया और प्लग में डाल के सुसाइड किया। आज तक हम ऐसा सुसाइड कभी नहीं देखा था। तो क्या ऐसे मिस्ट्री से नए लोगों को प्रोत्साहन मिलता है क्या? नहीं, बस समझे नहीं, क्वेश्चन क्या था कि हाँ, प्रोत्साहन टू कमिट सुसाइड फ्रॉम दैट क्या? स्टोरी तो आपने कहा मिस्ट्री, मर्डर मिस्ट्री है ना आपकी स्टोरी। नहीं तो क्या? ऐसी फिल्में देख के लोगों को ये मिलता है नहीं, ऐसे फिल्म देख करके क्या मतलब आइडियाज आते हैं? Ideas, नए आइडिया। वो तो आपको फिल्म देखने के बाद पता चलेगा। आप जरा देख लो पिक्चर एक बार फिर बात। नमस्ते, मैं संजय जगताप कोल्हापुर से हूँ। नवाज भाई से मेरा एक क्वेश्चन है। आपने 2010 में एक फिल्म बनाई थी पिपली लाइव, उसमें आपने जर्नलिस्ट का रोल प्ले किया था। तो उसका उस टाइम आपका जो अनुभव कैसा था एज अ जर्नलिस्ट? ऑफ कोर्स बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था एज ए जर्नलिस्ट। और वो ऐसा जर्नलिस्ट था तो जो वाकई उसको जब कोई रियलिटी देखता है और बट वो उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाता, क्योंकि उसके बॉस की जो थोड़ी वो होती है कि वो ब्रेकिंग न्यूज़ चाहिए लेकिन दूसरे तरीके से चाहिए, रियलिटी नहीं चाहिए, तो बड़ा परेशान भी होता है, जो पीपल लाइव में दिखाया है। उसके अलावा जो बहुत सारे जर्नलिस्ट थे जो अब न था आएंगे, वो ये क्या करेंगे, जो पूरा ड्रामा चलता है वो था। बट एज ए जो कैरेक्टर था वो मुझे बहुत अच्छा भी इसलिए भी लगा कि उसकी जो कश्मकश है, आई एम श्योर कि वो आप लोगों के अंदर भी बहुत है, कि हमेशा जैसे आप देते भी हैं, हमेशा देते हैं, एक रियलिटी लोगों के सामने ला के खड़ी करते हैं, तो उससे लोगों को पता चलता है। वरना अगर ना हो ऐसा तो बहुत सारी चीज़ें एक राज की तरह रह जाएंगी। तो मुझे तो बहुत मज़ा आया था उसमें। हेलो सर, आई एम विशाल फ्रॉम इन गोवा न्यूज़ चैनल। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू फील दैट विच इज़ योर टर्निंग पॉइंट ऑफ योर करियर, जिससे आप एक कम रोल से सुपरस्टार बन गए, वो क्या था? ये सुपरस्टार, ये मेरा ये टैग जो है ना, मुझसे बहुत डर लगता है सर। मैं बहुत छोटा सा आदमी हूँ, मैं एक्टर हूँ और मुझे उसी में रहना अच्छा लगता है। ये टैग एनीवे, बट टर्निंग पॉइंट जहाँ तक मेरे ख्याल है, ऑफकोर्स मैं 2012 में मेरी 3 फिल्में आई थी, गैंग्स ऑफ वासेपुर, कहानी और तलाश। आई थिंक वो ईयर मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था, और गैंग्स ऑफ वासेपुर ऑफकोर्स मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था। हेलो नवाज सर, ग्रेट फैन सबसे पहले तो। और जैसे आप लोगों ने बताया कि ये उत्तराखंड के एक गांव में बेस्ड है ये स्टोरी, और मेरे जैसे हम उम्र जितने लोग हैं जो आपके दीवाने हुए गैंग्स ऑफ वासेपुर देखकर, वो भी एक छोटे शहर पे बेस्ड है। तो सर क्या आप ये मानते हैं, या आप इस पे क्या कहना चाहेंगे कि जो रीजनल जगहों पर, छोटे जगहों पर जाकर जो सिनेमा बन रहा है या वेब सीरीज बन रहे हैं, उसने इंडियन सिनेमा के फेस को कितना ज़्यादा चेंज किया है? आई थिंक कहते हैं ना, जितना लोकल होता है उतना ग्लोबल होता है। अगर आप और हमारी 90% जो हमारे लोग हैं वो छोटे बड़े शहरों में ही रहते हैं, है ना। उन्हीं की फिल्में हम बनाते हैं। जो दूसरी तरह की फिल्में होती हैं वो आई थिंक उसमें ना तो हिंदुस्तान दिखता, ना हिंदुस्तान के लोग दिखते। और बाहर सबसे ज़्यादा अगर वर्ल्ड में अप्रिशिएट किए जाते हैं, आप देख लेना, कोई भी फिल्म उठा के देखने ला, वो हमेशा लोकल ही होगी। और आने वाले वक्त में भी लोग उन्हीं फिल्मों को अप्रिशिएट करेंगे वर्ल्ड वाइड, जो बहुत लोकल होंगी, जो आपके गांव की होंगी, जो छोटे शहरों की होंगी, हमारे जैसे लोग, हमारे जैसे लोग होंगे, क्योंकि वही रियलिटी है, और वो रियलिटी वही ऑनेस्टी है, और वही देखना चाहता है पूरी दुनिया। सर मतलब इंडियन सिनेमा का फ्यूचर गाँव में है और आंचलिक। ऑफकोर्स छोटे छोटे शहरों में, गाँव में, ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शहरों में नहीं है, शहरों में भी लोग रहते हैं, है ना, वो भी है। मतलब मैं कह रहा हूँ कि जो लोकल जो चीज़ें होती हैं, चाहे वो मुंबई शहर की लोकल चीज़ें हों, यू नो। इंडियन सिनेमा का अच्छा कहानी से मतलब लोकल या अर्बन,
अच्छा कहानी हो तो सब लोग देखेंगे, कोई टेंशन। Yeah, the question is for the director of the film. So, what was the cost of the production of this, and how many days you went for the 350 shooting? crores. Yeah, And shot over 3,000 days. shot of 3,000 days. It's more than that actually. No, 400 he's just crores, kidding. right? No, 400 we don't disclose the Okay, you the don't want to budgets. disclose it. We don't disclose the budgets, but yeah, Okay, it's whatever needed to be spent was spent for the So film. you are in the IFFI for 1 or 2 days. You have any time to watch the international film in the festival? No, we've been busy. I've been busy. Just we also premiered Gandhi Talks earlier this week, so we've been busy with meetings and other such things. Unfortunately, I haven't had a time to do that. I don't know if Either Nawaz the bhai- director or actor had a time to watch any movie. Actually, I just finished the film yesterday, so I came from Cochin, so I don't. But it's tonight you plan to watch any movie Uh, because no. it's very hard work of selection committee picks the films from various countries to part of the film festival. So as a film directors, actors, producers, you should watch at least one or Agreed, two we movies. should. Agreed, we should. I think next time we'll come with more time just to, you know, I don't specifically think to you have watch. time for watching. Yeah. Thank you. Right. Yeah, thank जो you. आप हमें सजेस्ट कर रहे हैं वो हम देखेंगे और जो हमारी फिल्म वो भी आप देखेंगे। No, definitely, definitely. No. Government of India has special policy to promote Indian films in foreign land. Yeah. We should take our Indian films, the best films in the world. मैं तो देखूंगा। Yeah. जी. नवाज सर हाय, मेरा ये सवाल था कि गए साल भी आप इफ़ी में आए थे, तो गोवा से आपका बहुत सारा अच्छा लगाव है क्या? अगर आपको गोवा में शूटिंग करने का मौका मिले तो क्या शूटिंग करेंगे? बिल्कुल करेंगे और अभी मैं एक फिल्म की शूटिंग कर भी रहा हूँ यहाँ पे, तो कभी भी मौका मिलेगा तो गोवा चीज़ ही ऐसी है, बड़ा मन करता है ऑफकोर्स यहाँ पे रहने का, तो आने का, शूटिंग करने का, जब भी मौका मिलेगा मैं आऊँगा। एक ही शो है, एक ही शो है। एक ही शो है, कहाँ है? NFDC को बोला, सही कह रहे हैं। दीप्ति कहाँ है? नहीं तो एक और नहीं, अगर आई थिंक अगर दीप्ति और पृथुल जी अगर ऑर्गेनाइज करे, कल हम लोग कल भी रखवा सकते हैं शो। I think we should end the interaction here. You want to ask something? Thank you. I have two questions. I'm Runa Agarwal from Doordarshan Goa. The first is, do we expect either a theatrical release or a release on OTT? Is it going to be available on more platforms for everybody else to see? Yeah, it'll be available on Z5. The date of that we are yet to lock in, but I think sometime early next year, 2024, within the first 2-3 months. it should be मेरा out. दूसरा सवाल है नवाज जी आपके लिए। आप तो खैर किरदार के पीछे भागते हैं। You prefer the character and the role rather than the overall storyline. That's what draws you. Are there any characters that you have a yen to play in your career जो आपने अभी तक निभाई नहीं हो? कोई ऐसी कैरेक्टर जो आपकी इच्छा हो कि कभी आपके रास्ते आए? मैं चाहता हूँ कि एक बार मैं ओशो को कैरेक्टर निभाऊँ। ओशो का? जी, मेरी बड़ी दिली तमन्ना है उसको निभाने की। That would be interesting. Thank you. Thank you so much, Nawaz Bhai, Sharik ji, and the director of the film here. And thanks, my media friends, for coming in such large numbers. Thank you so much. Thank you, Vanitha. Thank